We had started with the chapter federalism, and in the last class I had revised, as this chapter was already done, so I had revised that what is federalism, the features of federalism, and what are those features present in the Indian constitution that makes India a federal country. Now we are moving to the second segment, that is how is federalism practiced in India. Means practically how it is possible that we are having all those features. फेडरल का मतलब हो जाता है वेयर द गवर्नमेंट इज डिवाइडेड इनटू यूनियन एंड स्टेट्स. तो in the very beginning, when India attained its freedom, which I had discussed in the last session, that when India had attained its freedom, at that particular moment, we were not having the states what we have today. India was not divided on the basis of what we call as Rajasthan or Madhya Pradesh or Uttar Pradesh. In fact, it was based on the provinces and princely states. And these provinces, as I have written, यहाँ पर आपको मैंने डाल रखा है the Rajputana, Madras province. So it was divided on the basis of provinces and princely states, out of which many of the states, जैसे यहाँ पर कश्मीर एक था, हैदराबाद आपका एक था, देन यहाँ पर आपका जूनागढ़ था, इधर आपकी जूनागढ़ था. These all were princely states, and it was only the diplomatic tactics of Sardar Patel that these states, these princely states had annexed with India. But अब हमने क्या किया था? तो the constitutional जो provincial था, that was already built कि India will be called as Union of States and there would be states. But कैसे हम states को create करें? तो आपके पेपर के अंदर this entire sentence may come. The creation of linguistic state was the first and major test for a democratic polity. या फिर write a short note on linguistic states. दोनों में से आपके कुछ भी आ सकता है. तो how could it be created? As I said, in 1947 the map was something different, and today if you see the map is different. अब नए states हैं, पुराने states vanish हो चुके हैं. You will not find those states, and many of the states have been changed, in the names have been changed. Andhra Pradesh is into two, Andhra Pradesh and Telangana. The capital of the capital of Tamil Nadu पहले जो था Madras था, now it is Chennai. Similarly, Bangalore into Bengaluru, Calcutta into Kolkata. So how this had happened? क्या जो लोग एक ही जैसे लैंग्वेज बोलते थे, not only the one who was speaking, even those who had a मतलब कि कल्चरल ज्योग्राफी, यानी एक जैसा कल्चर, एक जैसा लैंग्वेज, ये हमारे जो थे, दीज वर द मेन आइडियाज कि हमने क्रिएट किया नंबर ऑफ स्टेट्स. तो ये कैसे क्रिएट हुआ था हमारा? इन 1953 में हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है वो बनाया गया. मतलब ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन क्या था? इन 1952 Andhra Pradesh was the first state formed, and this was because of a hunger strike. वहां पर एक इंसान थे, पुट्टी सीताराम राजू. पुट्टी सीताराम राजू जो कि हंगर साइट पर चले गए थे. दैट क्रिएट Andhra Pradesh on the basis of
तेलुगु लैंग्वेज, क्योंकि उस वक्त में इफ यू सी द मैप I had shown you कि parts of Kerala, parts of Karnataka, parts of Tamil Nadu, मतलब कि and then आपका जो आंध्र प्रदेश, ये सब कुछ बोला जाता था as Madras. तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट. तो 1952 में आपके पुट्टी सीताराम राजू जो है ही हैड गॉन ऑन अ हंगर स्ट्राइक, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई. एंड उस वक्त में आपका आंध्र प्रदेश जो है दैट वाज क्रिएटेड. अब उस वक्त हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको लगा कि नाउ we need to divide the people on the basis of the language और culture, ताकि दोबारा ऐसा violence ना हो. And for that, State Reorganization Commission was set up. इनका काम था to see कौन सी जगह पे कौन से लोग रहते हैं, what is their ethnicity, what is their culture, what is their language. एंड इस तरीके से सबसे पहले हमारा जो है 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज जो है वो क्रिएट हुई थी आफ्टर जो आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हमारा सेट हुआ इन 1956. 53 में फॉर्म हुआ था, देन इसको 2 साल लगे पढ़ने में, एंड 56 में एस्टैब्लिश हुआ विथ 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज. बट मतलब कि एंड ये जो स्टेट्स थे दे वर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. जैसे आंध्रा इज फॉर तेलुगु, तमिलनाडु, केरला मलयालम. उसी तरीके से देर आर सम स्टेट्स विच आर बेस्ड ऑन आपके एथनिसिटी ऑफ कल्चर, यानी कि कल्चर के बेसिस पर, और वो हमारे हैं नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड. ये आपका 1 मार्कर क्वेश्चन हो सकता है. So this was the question हमारे लिए, and this was how this question was answered. यानी कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के थ्रू जो है आपके फॉर्मेशन ऑफ सेम मतलब कि वो जो है किया था. कुछ हमारे नेशनल लीडर्स थे, उनको डर था दैट अगर हमने कंट्री में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग स्टेट्स क्रिएट कर दिए तो हो सकता है दैट पीपल में डिसइंटीग्रेट और कंट्री अलग अलग हो जाए. और इसीलिए 1947 में हम लोग आज़ाद हुए, 52 तक नथिंग वाज डन. बट लेटर ऑन हमने देखा दैट लिंग्विस्टिक स्टेट्स, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज हैज गिवन मोर इजी एडमिन, क्योंकि अपने अपने राज्य का जिस कल्चर या जिस लैंग्वेज के हैं द पर्सन बिलोंगिंग टू द सेम कैटेगरी इज रूलिंग. सो दिस वाज हाउ द सबसे पहला अगर हम लोग कहते हैं सेंट्रल टू स्टेट का जो हमारा पावर था, दैट इज आपका जो फेडरल जो सिस्टम था दैट वाज गिवन. नाउ ये तो था डिविजन ऑफ द स्टेट्स. अब हमारा सेकेंड प्रॉब्लम था हम इंडिया में किस तरीके के लैंग्वेज को अडॉप्ट करें, यानी कि should there be a national language. if you are going to America today, आपको ट्यूफल पास करना पड़ता है, दैट इज आपका टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज फॉरेन लैंग्वेज, क्योंकि इंग्लिश इज देयर national language. If you go to Sri Lanka, Sinhala is their national language. तो इंडिया, हम कहते हैं कि इंडिया में हिंदी is there, but हिंदी is not a national language but an official language. तो कैसे हुआ वो, क्यों हुआ? क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि इंडिया के अंदर हम इतने सारे स्टेट्स हैं, एंड सबसे बड़ी बात क्या है, नॉट ओनली वी आर हैविंग दीज लैंग्वेजेस, इन लैंग्वेजेस के सब लैंग्वेजेस भी हैं. हिंदी जो उत्तर प्रदेश में बोलते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं, एंड द हिंदी विच इज स्पोकन इन बिहार मतलब कि सॉरी इन मध्य प्रदेश इज डिफरेंट. द सेम हिंदी विच इज स्पोकन इन आंध्र प्रदेश इज डिफरेंट. लखनऊ में अलग है,
इलाहाबाद में अलग है। तो हमारे यहाँ तो एक लैंग्वेज के इतने फॉर्म्स हैं, हाउ कैन बी एक लैंग्वेज को हम नेशनल लैंग्वेज कैसे बोले? सो द सेकेंड टेस्ट of Indian Federation was language policy, because according to constitution there was no national language. Hindi was the official language, but problem क्या है, आप हिंदी को impose करते हो तो only 40% people in the Indian society are able to speak Hindi. अभी तो हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि हिंदी को बहुत आराम से हम लोग स्पीक मतलब वी आर स्पीकिंग। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज, मैं छोटी थी तो मेरे जो कजिन्स होते थे दे यूज्ड टू गो टू हिंदी क्लासेस, बट हिंदी को ओपनली स्पीकअप करना तमिलनाडु में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। द रीजन वॉज नोबडी वांटेड दैट हिंदी शुड बी इम्पोज्ड। हिंदी को पढ़ना बुरा नहीं है, but it should not be imposed. So that is why even in Tamil Nadu there was a very big इसी की वजह से हिंदी को कहीं मतलब कि फोर्स ना करे, there was a movement, and that is why हमारे यहाँ पर बिसाइड्स हिंदी मतलब टोटल 22 है, बट बिसाइड्स हिंदी 21 लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड एज अ शेड्यूल्ड लैंग्वेज बाय कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि मतलब कि एक स्टूडेंट, जैसे आप में से कोई बच्चा है, अ चाइल्ड इज बिलोंगिंग टू से बंगाल and the child is staying in Bengal, he has been born and brought up in Bengal, तो वो अपने जो कोई भी ऑफिशियल एग्जाम है उसको वो इंग्लिश, हिंदी या अपने लैंग्वेज में ले सकता है। Whereas इंग्लिश को क्यों डाला गया? Why English was put? ठीक है, this is because इंडिया हमारे यहाँ पर इट वॉज अकॉर्डिंग टू हमारा जो ओरिजिनल था, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द यूज ऑफ इंग्लिश वॉज सपोज टू बी स्टॉप्ड इन 1965, बट इंग्लिश उस वक्त में हैड बिकम अ कॉमन लैंग्वेज। दिस वॉज बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश, क्योंकि ब्रिटिश तो हर जगह पे थे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं इंग्लिश को इंट्रोड्यूस कर दिया था, एंड दैट इज वाई दे सेड कि इंग्लिश को कंटिन्यू रखो एज अ कॉमन प्लेटफॉर्म। And इसीलिए the central government agreed that English and Hindi can be used for the official purpose. कुछ लोगों का कहना है कि इंग्लिश को नहीं करना चाहिए, बट प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यू होता है। अभी भी हिंदी जो है, हिंदी दिवस हम मनाते हैं, इट इज आई थिंक ऑन 8 दिसंबर। वी ट्राई टू प्रमोट दैट, बट द फ्लेक्सिबिलिटी कि आप जिस एरिया में रहते हो वहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज या फिर एक कॉमन लैंग्वेज, अब मैं दिल्ली में हूँ, इफ आई गो टू कोलकाता, इन विच लैंग्वेज शुड आई स्पीक? आई डोंट नो बंगाली, तो मैं किस लैंग्वेज में बात करूँ? सो देयर शुड बी अ कॉमन प्लेटफॉर्म, एंड दैट इज व्हाई इंग्लिश वॉज agreed. So this is the language policy. Now the third one was, ये हमने कहा सेंटर टू स्टेट और दोनों के एरियाज बना दिए गए। नाउ हाउ डू दे शेयर द पावर्स? अब इन पावर्स को वो शेयर कैसे करते हैं? क्या उनका रिलेशन बहुत अच्छा है? अब इन यूनिटरी गवर्नमेंट व्हाट हैपेंस इज, सेंटर में जो पॉलिटिकल पार्टी है वही स्टेट में भी है, बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। अगर हमारे यहाँ 28 स्टेट्स हैं तो इस वक्त फिलहाल के लिए 2022 अराउंड 22 स्टेट्स आर अंडर बीजेपी, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं रहा है। देयर मतलब कि इन द इनिशियल 1950s 60s 70s में 22 स्टेट्स वर अंडर कांग्रेस एंड द 7 वर मतलब कि जो बाकी स्टेट्स होते थे उस वक्त 28 तो नहीं थे, बाकी जो स्टेट्स होते थे दे वर अंडर अलग मतलब कि डिफरेंट पार्टीज। एंड to share the power
between the center and state was a very good, very big challenge. क्योंकि सेंटर चाहता था कि जो मतलब कि सेंटर में जो पॉलिटिकल पार्टी होती थी वो चाहती थी कि हर स्टेट में वही पॉलिटिकल पार्टी आ जाए जिससे कि और उनके लिए पावर हो जाए. सो हाउ डिड इट कम? So, restructuring the center-state relation is one more way in which federalism has strengthened in practice. But in the reality, it has been very difficult. As I said, for a long time, the same party ruled both at center and most of the states. It happened till 1970. Most of the states were under the same ruling party. तो इसका मतलब ये नहीं था कि स्टेट्स को अपने पावर नहीं थे, बट फिर भी सेंटर और स्टेट में सेम पॉलिटिकल पार्टी होने की वजह से इजी होता था उन एरियाज में कोऑपरेट करना. और जिन एरियाज में दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज होती थी वहां पर द सेंटर वुड ट्राई टू अंडरमाइन द पावर ऑफ द स्टेट्स. They would misuse the constitution to dismiss the state government that were controlled by rival party. वो जानबूझकर ऐसा करते थे कि उस एरिया में या तो कुछ ऐसा दंगे फसाद कर देंगे या दे वुड नॉट कोऑपरेट, ना अपने रेवेन्यू नहीं शेयर करेंगे. और इस तरीके से नेचुरल है कि जब रेवेन्यू नहीं शेयर करेंगे तो वहां पर जो है वंस अगेन मतलब कि प्रोटेस्ट होगा तो इलेक्शंस दोबारा होंगे और इस तरीके से दे वुड बी मिस यूजिंग द पावर्स. बट दिस ऑल चेंज्ड आफ्टर 1990, क्योंकि जो 1990 है ना, हम इसको एरा ऑफ कोएलिशन बोलते हैं. We call it as era of coalition. क्यों? क्योंकि coalition का मतलब होता है when two parties are joining their hands to rule the government. And coalition जो होता है, it is always done after the elections. मतलब इलेक्शन का रिजल्ट आ गया, द रिजल्ट इज नॉट इन द फेवर ऑफ द पार्टी, तो दो पॉलिटिकल पार्टीज मिल जाएंगी, नोबडी विल बी गेटिंग अ क्लियर मेजॉरिटी, तो दो पार्टीज आपकी मिल जाएंगी टू रूल द एरिया. दैट कैन बी सेंटर और स्टेट. वेयरएज आपके अलायंस होता है जिसमें जॉइन देयर हैंड्स बिफोर द इलेक्शंस, यानी कि अपना सपोर्ट जो है उस बड़े पॉलिटिकल पार्टी को देना. और हमारे यहाँ पर एनडीए, यूपीए, ये दो बड़े अलायंसेस हैं. दिस यू विल बी रीडिंग इन द पॉलिटिकल पार्टी. एनडीए इज द करंट बीजेपी रूल्ड and UPA is the one which is headed by Congress. But उस वक्त में no majority was got by any single party, so they entered into coalition. लेकिन coalition government हमारे यहाँ पर जो है that was a failure. Coalition was a failure. Why? Because in coalition you have to go with many what you call as problems. उस वक्त में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक जजमेंट दिया दैट सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पावर को मिसयूज नहीं कर सकता. सो नाउ देयर वाज नथिंग, लेकिन दे हैड टू जस्ट शेयर देयर पावर with their rival or maybe known party. जरूरी नहीं है, कांग्रेस और बीजेपी कभी नहीं मिले हैं, but कांग्रेस एंड जनता दल, बीजेपी एंड शिवसेना, so they would be joining their hands and ruling the. but coalition में problem क्या आती है? when you are joining your hands, you also have to share your power. तो it will always run on conditions.
वो हमेशा कंडीशंस पे रन करेगा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडीशंस? मतलब कि भाई अगर मैं अपना सपोर्ट दे रही हूँ तो मुझे भी तो कुछ चाहिए. And certain times when the conditions were not fulfilled, they would withdraw their support. वो कहेंगे ठीक है हम सपोर्ट विड्रॉ कर रहे हैं, आपने हमारा नहीं किया, हम विड्रॉ करते हैं. और उस वक्त में क्या होगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट होती थी उसको जो है रिजाइन करना पड़ता था क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है. एंड बिकॉज टू मेक अ गवर्नमेंट इन द पार्लियामेंट यू नीड 2/3 ऑफ द सीट्स. आपको 2/3 ऑफ द सीट चाहिए होता है, चाहे वो खुद आप विन करो या फिर आपको कोई पार्टी सपोर्ट करे. बट नाउ to some extent this problem has been solved, yet अभी भी सेंटर टू स्टेट रिलेशन एक क्वेश्चन मार्क रहता है. अभी भी आप देख सकते हो देयर वाज सम प्रॉब्लम इन महाराष्ट्र, अभी मध्य प्रदेश में चल रहा है. तो what happens is normally the center has to share some power, some revenue with them. कई बार अब स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं कर सकती है और लोग क्या है, जो स्टेट गवर्नमेंट है दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे आर अकाउंटेबल टू देयर स्टेट्स. वहां के जो लोग हैं उनको जवाब देना पड़ता है. एंड इस तरीके से व्हाट हैपेंस बिकॉज दे आर हैविंग अ पुअर रिलेशन विद द सेंटर, तो कई बार स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको रिजाइन करना पड़ता, इलेक्शंस होते, फिर वो पार्टी आती. बट नाउ ड्यू टू में मतलब कि ऐसा क्यों हुआ था, 1970 तक हमारे यहाँ सिर्फ एक पार्टी डोमिनेंट था. बट आफ्टर 1970 इन इंडिया नंबर ऑफ पार्टीज इमर्ज्ड. पहले कांग्रेस एक था, फिर कांग्रेस 2 हुआ, कांग्रेस ओ एंड कांग्रेस आर. देन कांग्रेस आर तो इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गया, लेकिन जो दूसरा था वो मतलब कि इट चेंज इट्स नेम इनटू जनता दल. जनता दल से आरजेडी, देन आपका भारतीय जनसंघ विच इज राइट नाउ द भारतीय जनता पार्टी, सीपीआई. तो हमारे यहाँ मल्टीपल पार्टी सिस्टम्स है और उसकी वजह से क्या होता है कि द पीपल आर नॉट एबल टू डिसाइड कि किसको वोट दिया जाए, तो किसी एक पार्टी को क्लियर मेजोरिटी जाती नहीं. बट यस, जो लास्ट 2 इलेक्शंस हैं जो हमारे 14 और 19 में हुए थे, उनमें भारतीय जनता पार्टी हैड गॉट अ क्लियर मेजॉरिटी. सो दिस इज द थर्ड एरिया जहां पर हमारा जो फेडरल है यानी कि शेयरिंग द पावर है, दैट हैज बीन अडॉप्टेड. नाउ I in the very beginning had told you that in India there were only 2 tiers of government, that is central and state government. पंचायत हमारे यहाँ पर बहुत सालों से था. आप कोई भी पुरानी कहानी पढ़ेंगे तब भी आप देखोगे कि पंचायत सिस्टम वाज देयर, लेकिन पंचायत वाज नॉट अ प्रॉपर गवर्नमेंट. वो तो जैसे घर के अंदर होता है कि 4 जने मिलकर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, बड़े बुजुर्ग आते हैं, कोई बड़ी बात होती है तो उस तरीके से इन ऑल द विलेजेस द एल्डर्स यूज्ड टू हैव द पावर्स. इट वाज नॉट अ सिस्टम. नाउ दिस बिकेम वेरी डिफिकल्ट. हमारे यहाँ महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये स्टेट्स इतने बड़े हैं कि दे आर मोर देन एनी कंट्री. तो अब क्या किया जाए, लाइक उत्तर प्रदेश इज एज बिग एज रशिया एंड महाराष्ट्र इज अबाउट एज बिग एज जर्मनी. अब कैसे किया जाए? एक स्टेट गवर्नमेंट जो होती थी दैट वाज नॉट एबल टू फुलफिल द नीड्स ऑफ ऑल द पीपल लिविंग इन दैट कंट्री. कुछ को मिल जाता था, कुछ को नहीं मिलता था. there is thus need of power sharing within these states. अब इन स्टेट्स को हम अलग करके और अलग अलग छोटे स्टेट्स को बना नहीं सकते थे और इसीलिए इन्हीं स्टेट्स के अंदर एक और टायर यानी कि एक और लेवल को डाला गया विच वॉज कॉल्ड एज अ थर्ड टायर. यानी कि एक हमारा है सेंट्रल विच इज for the entire nation,
then states for different language और culture based, and then इन states के नीचे आपका आता था local government. And local government जो है, it was again divided into two areas. For those which are called as the rural area, यानी कि villages, उनके लिए हमारा rural government हो गया, and those which are called as the cities, उनके लिए हमारा जो है municipal यानी कि urban government हो गया. क्योंकि रूरल होता है जहां आपके लोग मैक्सिमम पीपल आर वर्किंग इन द फार्म, एंड अर्बन इज वेयर दे आर वर्किंग इन डिफरेंट एरियाज लाइक फैक्ट्रीज और अदर. और इस तरीके से लोकल गवर्नमेंट वाज फॉर्म विद द नेम ऑफ पंचायत एंड. तो व्हेन द पावर इज टेकन फ्रॉम द सेंटर से थोड़े से आपके पावर्स, स्टेट से आपका थोड़ा सा पावर लेकर लोकल गवर्नमेंट को दिया जाता है. इट इज कॉल्ड एज डिसेंट्रलाइजेशन. इन सिंपल वर्ड्स बेटा, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर को सबके साथ शेयर करना, शेयरिंग इट टू द लास्ट लेवल ऑफ एनीथिंग. सबका अपने एरिया पर दे आर एबल टू टेक द डिसीजन. What was the basic idea behind decentralization? One marker question. It was because there are large number of problems and issues which are best settled at the local one. People जो कि locally है उनको अपनी problem ज़्यादा पता होती है. Now how can I tell a problem? अब अगर मान लो कोई मुझे कहता है पंजाब में ये प्रॉब्लम है, ओके पंजाब में प्रॉब्लम होगी बिकॉज वहाँ का कल्चर अलग है. अब मैं ये कैसे बोल सकती हूँ कि हमारे यहाँ भी सेम प्रॉब्लम है, एंड आई कैन नॉट डील दैट प्रॉब्लम एट द सेम वे जो वहाँ का इंसान करेगा. सो दे ऑल्सो हैव बेटर आइडियाज ऑन वेयर टू स्पेंड मनी, हाउ टू स्पेंड द मनी मोर एफिशिएंटली. क्योंकि लोकल लेवल को अपनी प्रॉब्लम्स पता है, कौन सा प्रॉब्लम ज़्यादा ज़रूरी है वो पता है. They can also directly participate the people. और इसीलिए जो local government था that was introduced, ताकि locally वहाँ पे जो लोग हैं they don't need to belong to a political parties, in at least in the rural area. They can at least take participation. The need for decentralization was recognized in the constitution, और ये हमारा जो है हुआ था with 73rd and 74th amendment of constitution. 73rd and 74th. 73rd आपका रूरल एंड 74th अर्बन जो है इनको मतलब कि रिकॉग्नाइज किया गया था. मतलब ये दोनों अमेंडमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था एंड स्टेट गवर्नमेंट के नीचे जो है दैट वाज डन. एज आई सेड, पंचायत लोकल गवर्नमेंट पहले भी था लेकिन दे वर नॉट फंक्शनिंग. They did not have any elections, they did not have any power. और इसीलिए in 1992 the constitution was amended and the third tier was made, 73rd and 74th amendment. Now क्या किया था उस amendment में, क्या डाला? सबसे पहला ये आपका this question is very 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 important. What is the rationale behind में आपका ये वाला आता है. This is the one which comes in 3 marks. But what are the features of decentralization आपका ये है which comes या which has been coming in the paper for 5 marks.
बाकी आपका एक आता है व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल, या व्हाट आर द फीचर्स या द थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ये वाला आता है आपका। उसमें आपका चॉइस में दिस क्वेश्चन कम्स। So now what happened is, सबसे पहला आपका local government हो गया. In the urban areas they were called as municipal, in the rural areas they were called as panchayat. Regular elections had to be conducted there. जैसे हमारे elections होते हैं, एक होता है आपका यूनियन गवर्नमेंट का, जो अभी हमारा हुआ था 2019 में, 2019। देन आपके स्टेट गवर्नमेंट्स में जब जब वो गवर्नमेंट उनकी टेन्योर पूरा करता है वहाँ होता है, लाइक आई थिंक नेक्स्ट ईयर और समवेयर आपके जो है दिल्ली में होगा। इन यूपी अभी लास्ट ईयर हुआ था। वेयर इज फॉर द सेम ऐसे ही आपके लोकल गवर्नमेंट का भी होता है इलेक्शंस, बट सेंटर में जो इलेक्शंस होते हैं उनके लिए हम चीफ इलेक्शन ऑफिसर, इलेक्शन कमीशन विच इज इन दिल्ली, वो कंडक्ट करता है। वेयर इज जो आपके लोकल लेवल है उनके लिए इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन स्टेट इलेक्शन कमीशन को क्रिएट किया है हर स्टेट में, जो इनके इलेक्शंस को जो है कंडक्ट करते हैं। सीट्स व्हेन द इलेक्शंस आर हेल्ड, तो सीट्स आर रिजर्व्ड in the elected body for scheduled caste, scheduled tribes, OBCs, and 1/3 of the positions are reserved for women. ये आपका 1 marker question है कि at which level 1/3 of the positions are reserved for women. हमारे सेंटर और स्टेट में जब इलेक्शंस होते हैं तो उसमें रिजर्वेशन नहीं है. The women can contest the elections, but there is no reservation. But in लोकल लेवल इट इज मस्ट कि आपके 1/3 जो है वो विमेन हो। और आप देखेंगे तो मैक्सिमम आपके पंचायत के जो सरपंच होती हैं वो विमेन होती हैं। दे आर इवन फ्रॉम द बैकवर्ड कम्युनिटी ऑल्सो। दिस इज बिकॉज देयर इज कंपल्सरी रिजर्वेशन। The state governments are required to share some powers and revenue with the local government, और वो state to state आपका रिजर्व करता है कि कौन कितना शेयर करता है। These are the features of decentralization. आपकी 5 मार्कर के क्वेश्चन में आने की संभावना है। Now the next is, what is rural government? I told you the rural government is called with the name of पंचायत। तो व्हाट इज पंचायत? रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन बाय द नेम पंचायती राज। और मैंने आपको बताया दैट इन इंडिया पंचायत वाज अ वेरी वेरी ओल्ड कंसेप्ट। जब हमारे पास गवर्नमेंट भी नहीं होती थी ना, और जब ब्रिटिश भी होती थी, इवन एट दैट टाइम ऑल्सो द लोकल एरियाज में पंचायत बिठाई जाती थी। हम बोलते थे, हम मतलब उस जमाने में लोग बोलते थे पंचायत बिठाओ भाई। पंच यानी कि 5, एंड 5 जो आपके एडल्ट मेंबर्स होते थे, ओल्ड मेंबर्स होते थे, वो किसी भी मुद्दे पर दे वुड बी टेकिंग द डिसीजंस। बट नाउ इट इज अ गवर्नमेंट, अ सिस्टम। अब कैसे होता है? अब मान लो एक विलेज है जो बड़ा है। अब विलेज की there is a definition by constitution कि minimum इतने लोग वहाँ रहने चाहिए, but there are very small villages also। तो हो सकता है एक विलेज बड़ा हो और बाकी आपके ग्रुप ऑफ विलेज हो, और वो मिलकर अपने आप को एक पंच के अंदर ले आए। सो एवरी विलेज और ग्रुप और विलेज जो है, इनका जो हेड होता है उनको हम बोलते हैं ग्राम पंचायत। और इसमें जितने भी 18 इयर्स एंड अबव जो होते हैं, दे आर ऑल द मेंबर्स। दे आर ऑल द मेंबर्स। इस ग्राम पंचायत के हर इंसान जो 18 साल से बड़ा है वो इसका मेंबर होता है। एंड देयर इज अ काउंसिल, मतलब एक कमिटी होती है ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स, जिनको हम पंच बोलते हैं। यानी कि इनके जो इलेक्शंस होते हैं, तो जो काउंसिल मेंबर्स होते हैं, काउंसिल इलेक्शंस हम बोलते हैं, उनको हम चूज करते हैं।
और उनका जो हेड होता है, मतलब इस पूरे गांव का हो सकता है एक काउंसिल हो या फिर 3-4 गांव मिलकर काउंसिल बनाते हैं, और जो लोग काउंसिल मेंबर्स होते हैं उनका हेड होता है सरपंच। जैसे हमारे यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हेड है वो है प्राइम मिनिस्टर, स्टेट गवर्नमेंट का जो हेड है वो है चीफ मिनिस्टर। तो जो आपके काउंसिल ऑफ मेंबर्स पंचायत को रूल करते हैं उनको हम बोलते हैं, उनके जो हेड होते हैं उनको बोलते हैं सरपंच। एंड ऑल द अडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन दैट वार्ड और विलेज उनको सिलेक्ट करते हैं। ये जो मैंने आपको बताया था, ऑल द मेंबर्स अबाउ 18 ईयर्स आर द मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत। तो ये लोग जो है ये वोट करते हैं टू इलेक्ट द काउंसिल ऑफ मेंबर्स। बट सबसे बड़ी खूबी क्या है कि इस काउंसिल इलेक्शंस के लिए कोई भी खड़ा हो सकता है। इट इज नॉट मस्ट दैट यू हैव टू बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। You can directly also stand for any position. The panchayat works under the overall supervision of the Gram Sabha. जो 18 साल से बड़े जितने भी members हैं वो लोग supervise करते हैं. All the voters are its members. It has to meet at least twice or thrice in a year to approve the annual budget and to review the performance of Gram Panchayat. ये लोग टाइम टू टाइम मिलते हैं एंड ग्राम पंचायत क्या काम कर रहा है, वो जो काउंसिल मेंबर वो लोग मतलब कि कौन कौन से काम हो रहे हैं, ये काउंसिल मेंबर्स का काम होता है। दिस लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल. अ फ्यू ग्राम पंचायत आर टुगेदर फॉर्म व्हाट वी कॉल एज पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल. यानी कि जो मैंने अभी आपको यहाँ बताया ये आपके थे एक काउंसिल, ये थे आपके ग्राम मतलब कि पंचायत. अब ऐसे 3-4 पंचायत मिलकर ये एक बड़ा सा जो है ये बन जाता है आपका समिति या ब्लॉक. और ऐसे कई समिति मिलकर आपके बन जाते हैं जोन यानी कि डिस्ट्रिक्ट. यानी कि सबसे छोटा गांव या फिर 3-4 गांव का हो, इनके जो पंचायत है उनका ग्रुप मिलकर बन जाता है आपका समिति के ग्रुप्स मिलकर आपके बन जाते हैं जोन या जिला. यानी कि एक जिला के अंदर कई समितियां या ब्लॉक्स, एक ब्लॉक के अंदर कई आपके विलेजेस. A few gram panchayats are grouped together to form what is called as panchayat samiti or block or mandal. The members of this representative body यानी कि मंडल के जो हैं they are elected by the पंचायत members. अब इसमें ग्राम पंचायत के लोग नहीं करते हैं, ग्राम सभा के लोग इसमें काम नहीं करते हैं. जो ग्राम सभा था that elected the ग्राम पंचायत. जो ग्राम सभा के मेंबर्स थे यानी कि ऑल द मेंबर्स अबाउ 18 ईयर्स उन्होंने ग्राम पंचायत को इलेक्ट किया. अब ये जो ग्राम पंचायत के मेंबर्स हैं वो समिति के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं. ऑल द पंचायत समितिज और मंडल इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द जिला परिषद. Most members of the Zilla Parishad are elected. Members of Lok Sabha, MLA, some other officials are also its member. Zilla Parishad chairperson is the political head of Zilla Parishad. मतलब जो जैसे आपके ग्राम पंचायत के हेड को सरपंच कहा गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो आपका जिला के लेवल पर है उसको हम बोलते हैं परिषद. यानी कि जिला परिषद, व्हाट वी कॉल एज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. तो जो जिला परिषद है ही ओवरसीज और ही सुपरवाइजेस ऑल द समिटीज. समिटीज में बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं एंड ये ब्लॉक्स के नीचे आपके छोटे छोटे गांव के जो पंचायत होते हैं वो मिले होते हैं. और पंचायत होता है एक गांव का भी हो सकता है या 4-5 गांव मिलकर एक पंचायत बना सकता है. सो दिस इज हाउ द पंचायत सिस्टम इन इंडिया वर्क्स. मतलब आप कह सकते हो कि इट इज लाइक अ ब्लॉक.
आपका ये एक ब्लॉक है जिला। जिला आपके छोटे 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 ब्लॉक्स में है। इन ब्लॉक्स के नीचे आपके छोटे 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 विलेजेस हैं, और ये जो ब्लॉक्स हैं या समिति इनको हम कहते हैं, और जो ये हैं इनको हम पंचायत कहते हैं। और ये जो पंचायत होते हैं दे आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा। यानी कि अगर आप एक गांव में रहते हो तो यू आर गिविंग द वोट टू द विलेज पंचायत। जो पंचायत के मेंबर्स होते हैं वो समिति को करते हैं, एंड इनका हेड होता है आपका जिला परिषद यानी कि द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो दिस इज द वे हाउ विलेजेस फ्रॉम द स्मॉलेस्ट विलेज, आपका जो है हर जगह पे जो है लोकल पीपल आर इन्वॉल्व, एंड दिस इज कॉल्ड द एसेंस ऑफ decentralization. Similarly, local bodies exist for urban areas also. That is आपका municipality. अभी दिल्ली जो है फिलहाल के लिए, पहले आपका जो दिल्ली था इट वाज सेड टू बी नॉर्थ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, सेंटर दिल्ली, साउथ दिल्ली एंड ईस्ट, उसका नाम क्या है, बट अभी जो है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एंड सेंटर था, बट नाउ सम ऑफ देम हैव बीन मर्ज्ड, उनको एक कर दिया गया है। तो इन द अर्बन व्हाट हैपेंस इज बिग cities are constituted into municipal corporations. Both municipalities and municipal corporations are controlled by elected body consisting of people's representative. The मतलब ये पूरा आपका जो है म्यूनिसिपैलिटी है इन द सिटीज, और ये छोटे छोटे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, जैसे ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, वेस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, और इनके इलेक्शंस आपके अलग से होते हैं। स्टेट का अलग होता है, पंचायत का अलग होता है, यूनियन का अलग होता है, इनका अलग होता है। एंड म्यूनिसिपैलिटी चेयरपर्सन इज अ पॉलिटिकल हेड ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, यानी कि जो ये बड़े वाला है उसका हेड है आपका म्यूनिसिपल चेयरपर्सन, एंड जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है ये जो छोटे छोटे हैं इनका हेड होता है मेयर। तो इन दिस मैनर जैसे पंचायत आपका सेट हुआ है इन दी विलेजेस, आपके म्यूनिसिपैलिटीज आपके सेटअप हुए हैं इन द अर्बन एरियाज। सो दिस इज हाउ फेडरलिज्म जो है इट हैज बीन प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो है इसको हमने प्रैक्टिस किया है properly. This new system of local government is the largest experiment in democracy anywhere in the world. क्यों? क्योंकि there are about 36 lakh elected representatives in पंचायत and municipality. सोचो, हमारे यूनियन गवर्नमेंट में 543 ओवरऑल पार्लियामेंट में मेंबर्स हैं, और उसमें से जो रूलिंग गवर्नमेंट होता है उसको 2/3 मतलब कि वो होते हैं जो 2/3 होते हैं, दैट इज अराउंड दे आर अराउंड 250 पीपल। वेरएस हमारे पास 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, क्योंकि हर एक पंचायत का एक सरपंच होगा, हर एक म्यूनिसिपैलिटी का एक म्यूनिसिपैलिटी चेयरपर्सन होगा, हर एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का एक मेयर होगा, एक मतलब तो इस तरीके से देयर आर मोर देन 36 लाख पीपल। This number is bigger than the population of many countries. Constitutional status for local government has helped to deepen democracy. It has also increased the women's representation, क्योंकि यही एक एरिया है जहां आपका 1/3 of the seats are completely reserved for women, और इसीलिए women participation must हो जाता है।
At the same time, there are many difficulties. ये आपके पेपर में आता है. What are the difficulties faced by मतलब कि local government? While the elections are held regularly and enthusiastically, Gram Sabhas are not held regularly. Many state governments have not transferred significant powers to the local governments, nor have they given adequate resources. यानी कि even though सेंट्रलाइज से डिसेंट्रलाइजेशन हो गया है, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब हो जाता है द पावर टू टेक डिसीजन हैज बीन given to the lowest level of our country, that is to the local government. Yet अगर हम देखें तो हमारा जो गवर्नमेंट है, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, दे डू नॉट कोऑपरेट विद द लोकल गवर्नमेंट, क्योंकि उनको अपना पावर, उनको अपना जो रेवेन्यू वो शेयर करना पड़ता है. देन इवन जो ग्राम सभा होती है, दे ऑल्सो डोंट पार्टिसिपेट, दे ऑल्सो डोंट मीट रेगुलरली. जिन मुद्दों पे उनको काम करना चाहिए, नॉर्मली दे डोंट वर्क ऑल्सो. And in this manner, अभी भी it is very important to realize, even though the government, अभी जो ruling government है, it is trying to give more powers also, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है काम भी दिया जाए कि वो लोकल लेवल पे. देखो, अब लोकल लेवल पर जो काम होगा आपके घर के पास, if there is a pothole, if the roads are not repaired, तो वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम है. सीवर अगर बिछाना है तो वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम है. So it depends on how much participation the people are taking. But yes, गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से डिसेंट्रलाइजेशन के लिए थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया है, एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव बीन ऑल्सो गिवन द व्हाट यू कॉल एज, उनको जो है इंस्ट्रक्शंस हैं दैट दे हैव टू शेयर देयर पावर्स. येट हाउ इट इज डन इज डिपेंडिंग ऑन हाउ पीपल इन द फर्दर टाइम विल participate. So this is the entire chapter of federalism. Once again, I would just give you the important one key whenever the questions are there. Matlab, I am not talking about a periodic test, I am talking generally about the exams. The question, what is decentralization? Sorry, what is federalism? Features of federalism, difference between unitary and federal government, roots of federalism, coming together and holding together, then dual objectives of federalism, integral, to safeguard the integrity of the country and to adopt diverse population के लिए to adopt an accommodation. Then what are the features in the Indian constitution that makes India a federal country, या फिर the threefold distribution of powers, union list, state list and concurrent list. Concurrent list goes to those areas जहाँ state और center दोनों बनाता है according to the need, but if there is any dispute, then the rule made by the law made by the union government goes. और ये क्वेश्चन भी आता है कि it is often said center has more power, तो yes. Then there are residual powers जिस पर हम लोगों ने बनाया नहीं है, हो सकता आने वाले टाइम में these subjects में कम. Then the center has been given the power to make law on those areas. There are some special, all the states do not have the identical powers. Some states have extraordinary powers so that they are able to safeguard their culture, like आपका Nagaland है. Earlier Kashmir was there, but now Article 370 has been evoked. Then there are some areas जो बहुत छोटे हैं, yeah, they were not part of Indian Union at the time of independence. They are all called as union territories, and the union government is given special powers to govern these areas. फिर आपका आता है कि what are the challenges which makes India a federal country, या फिर how is
फेडरलिज्म प्रैक्टिकली प्रैक्टिस इन आवर कंट्री। तो जो सबसे पहला हमारा जो था दैट वाज आपका लिंग्विस्टिक स्टेट्स, यानी कि क्रिएटिंग अ कंट्री जहां द स्टेट्स आर बेस्ड ऑन द लैंग्वेजेस दे स्पीक और द कल्चर दे फॉलो। एंड इसके लिए हमारे यहाँ पर पहले आंध्र प्रदेश में, बिकॉज पुट्टी सीताराम राजू हैड गॉन ऑन अ हंगर स्ट्राइक एंड डाइड, तो आंध्र प्रदेश आपका 52 में क्रिएट हुआ था। लेटर ऑन द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वाज सेट अप एंड 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन ने 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज क्रिएट किए थे। बट लेटर ऑन धीरे धीरे करके जैसे जैसे ज़रूरत पड़ी द स्टेट्स वर क्रिएटेड। 22nd स्टेट हमारा है सिक्किम एंड 29th स्टेट है तेलंगाना। बट अभी जब 370 को हटा दिया गया था तो कश्मीर, जो जम्मू एंड ले वाला जो पार्ट था, दे वर क्रिएटेड इनटू 2 डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज। तो राइट नाउ वी हैव 28 states and 8 union territories. Then the second problem was the adoption of any common language as national language. Unlike other countries, India did not go for a uniform national language. Hindi was recognized as an official language, but Hindi is spoken only by 40% of the people. The 21 other languages also recognized, so that people are able to read, write their own language अपने गवर्नमेंट के काम के लिए। हिंदी को प्रमोट किया जाता है, बट बिकॉज देयर वाज अ वायलेंस ड्यू टू imposition of Hindi in Tamil Nadu, तो English is also considered to be the official language। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इसे 1965 में बंद कर देना चाहिए। देन द थर्ड वाज सेंटर टू स्टेट रिलेशनशिप विच वाज नॉट सो गुड, बट कोएलिशन एरा आफ्टर 1990 से थोड़ा सा फर्क आया है। नाउ वी आर हैविंग कोएलिशंस एंड अलायंस पार्टीज। देन डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि शेयरिंग द पावर टू द लोएस्ट लेवल। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड 73rd and 74th अमेंडमेंट से। 1/3 of the seats are reserved for women. There is reservation for scheduled caste, scheduled tribe and OBC. The state election commission conducts the election for these areas. अर्बन में म्यूनसिपालिटीज बोलते हैं, रूरल में पंचायत बोलते हैं। पंचायत स्टार्ट्स फ्रॉम अ स्मॉल विलेज टू ब्लॉक्स एंड ब्लॉक्स क्रिएट जिला, एंड जिला का जो हेड होता है वो होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। वेयरएस आपके जो म्यूनसिपैलिटीज हैं दे आर स्मॉल इनटू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस। म्यूनसिपल चेयरपर्सन म्यूनसिपैलिटी का हेड होता है एंड मेयर आपका म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का हेड होता है। सो दिस इज द एंटायर चैप्टर फेडरलिज्म।